Good afternoon, people, and namaskar to everyone. So, as you know that I'm representing Iconic right now, so let me talk about Iconic. Iconic as a brand, it's one of the best brand in India, I would say, and it is all the equipments are made in India, and this is the only brand which is Indian brand which is doing very good even internationally. So, just recently we have expanded our brand to Dubai and UAE. And soon we'll be expanding our brand in Europe countries also. The products, the equipments, whatever we have almost everything. Like whatever you need for hairdressing, tongs, straightening iron, and your crimping machine. And you have more, which I'll be doing it on my models. And there is one magic tool also, which I'll be showing you. And I'll be creating a look by using that. And the equipments are very handy, very comfortable, very lightweight, जो एक स्टाइलिस्ट का नीड होता है जब हम लोग कोई भी स्टाइलिंग क्रिएट करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है बहुत हैंडी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए ताकि हाथों में दर्द ना हो या कुछ भी और प्रॉब्लम होते हैं. So it's very comfortable, and so today I'll be doing four looks. So I'll be doing 4 models. And the one look is very bridal collection type, you know, it's very vintage. हम लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी मैगजीन्स में वेव्स वगैरह करके कितने अच्छे अच्छे एग्जैजरेट करके डिफाइंस करके अपडूज बनाते हैं. तो दैट आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट वेव्स. एंड द सेकंड लुक इज more of like a red carpet look. So if you see red carpet looks, it's more of like a fun texture, messy hair, and how you know create a nice and very sharp look, very chic look, something which is in vogue now these days. अब जो वो बूफों वगैरह वाला ज़माना था वो गया, राइट? हम लोग देखते होंगे मैगजीन्स में, एडिटोरियल्स में कितने नाइस वेव्स एंड exaggerated and very lot of texture. So those kind of looks I'll be doing it today. And my third look is more of like it's going to be very fun. So we'll play with the hair. And I gave this name to this look of mine, which is work hard and party harder. So basically, I'll show you a very defined look, and then I will play with it, and we'll make it like more fun and more textured. And the fourth one is very futuristic. Futuristic means something which is very avant-garde, which is very big. So you can have like, you know, you won't be able to do it on clients, but I'm sure you'll get inspired and uske aas-paas ka kuch you can do something at. So I'll call my first model. I will not waste my time. It is already here. So as you can see, Gurusha, could you please stand? Could you please stand? Episode 50. So I would like to show you कि मैंने इनके बालों को prep कैसे करा है. मैंने इनका 4 radius sections लिया पहले. आप देख सकते हैं. मैंने बालों को 2 साइड में डिवाइड किया, ईयर टू ईयर सेक्शन लिया, एंड देन उसमें मैंने बहुत टाइट करके पोनीटेल बांधा है. फिर मैंने पोनीटेल करने के बाद उसके ऊपर क्रिम्पिंग करा है, और फिर मैंने उसके अंडरनीथ में मैंने एक वॉल्यूम लगाया है. कैन यू सी दिस वॉल्यूम? तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं. अभी तक हम इसको क्या बोलते थे? स्टफिंग, राइट? तो स्टफिंग जो है बहुत ओल्ड स्कूल लगता है, बहुत. सो अगर आप इसको वॉल्यूम बोलोगे, वॉल्यूम हम क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये हमें वॉल्यूम क्रिएट करता है, तो इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे. ये थोड़ा सा और इंटरनेशनल टेक्निकली साउंड करेगा अगर आप इवन आप अपने क्लाइंट्स के आगे हम बोलोगे तो. सो मैंने इनके अंडरनीथ वॉल्यूम लगाया है, एंड देन इससे मैं एक शिनियॉन क्रिएट करूंगा, एंड देन उसके बाद विल क्रिएट अ वेव्स. या सो फर्स्ट सो एज यू कैन सी, मैंने इनके ऑलरेडी साइड्स में वेव्स क्रिएट करने के लिए टोंग किया हुआ है. तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन सा टेक्निक यूज करा है, और मैं इन टॉप सेक्शन पे आपको ये करके दिखाऊंगा. एंड गाइस, अंडरस्टैंड वन थिंग. सो बिफोर आई स्टार्ट माई ऑल द लुक्स, लेट मी टेल यू अबाउट द थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा फंडामेंटल. जब भी हम हेयर ड्रेसिंग करते हैं जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले सारी पिन्स. डू वी नो सारी पिन्स के बारे में? हमारे पास डिफरेंट साइज़ की पिन्स आती हैं, बॉब पिन्स आती हैं, यू पिन्स आती हैं. सो बेसिकली जो बॉब पिन्स होती हैं आप कब यूज़ करते हो? कोई बताना चाहेगा?
आई एम श्योर सबके अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बॉब पिन्स हमेशा जब भी आप स्कैल्प के ऊपर वर्क करते हो, आप हमेशा स्कैल्प के ऊपर सिर्फ बॉब पिन्स यूज़ करते हो. एंड देन वी हैव यू पिन्स, which is we even call it Jura pin, and Jura pin we use it when we work on the volume. जब हमें कोई भी शेप क्रिएट करना होता है, जब हमें कुछ भी जो आप शेप अचीव करना चाहते हो उसको होल्ड करने के लिए आप ये वाली पेन्स यूज़ करते हो. एंड देन वी हैव इनविजिबल पेन्स. इनविजिबल पेन्स आर समथिंग आपको ये जब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हम पूरा जो लुक है वो फिनिश कर रहे हो, मतलब एकदम लास्ट में फिनिश करने के लिए. And even the best part, even Iconic has pins also, yeah. And usually you don't get pins जिनके नीचे ये डॉट होता है, ताकि ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं, क्लाइंट को कभी भी लगेगा नहीं. अदरवाइज आप देखोगे आप पिंस लगाते हो, क्लाइंट के मुंह बनते हैं, दे फील इट हर्ट्स ऑल्सो समटाइम, हमें पता नहीं चलता है, पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाते हैं क्लाइंट्स. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार. तो कंफर्ट होने के लिए मैं आइकॉनिक की पेन्स यूज़ करता हूँ. या मैं बालों में स्प्रे करूंगा ताकि मुझे होल्ड मिले अच्छा सा. मैंने बालों को ऑलरेडी प्रेप करके रखा है. मैंने बालों में पहले ब्लो ड्राई करा है, मैंने प्रेप प्रोडक्ट्स लगाए हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था, जो भी हम लोग अपडूज बनाते थे, कुछ भी हम लोग लुक क्रिएट करते थे, हम क्लाइंट्स को बोलते थे कि अपने आप वॉश मत करना, विदाउट वॉश करके आना, तो हमारा जो जूड़ा है और ज़्यादा अच्छा बनेगा जो भी आप अपडू कर रहे हैं. बट अब ऐसा नहीं है. अब अगर आपको बहुत एडवांस, बहुत डिफाइन लुक क्रिएट करनी है, बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत इंटरनेशनल लुक क्रिएट करनी है, तो आपको बालों को प्रेप करना होगा, अच्छे से ब्लो ड्राई करना होगा, एकदम नाइस एंड क्लीन. एंड उसके बाद आप टोंग कर सकते हैं. टोंग करने का सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या होता है, मैंने ये चीज़ नोट करी है कि दिल्ली में काफ़ी सारे स्टाइलिस्ट हैं जो टोंग्स नहीं यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आप टोंग्स करेंगे एक बार, तो बालों को किसी भी वे में आप उसको मोल्ड कर सकते हो जैसा आप चाहते हो. स्ट्रेट बालों को डेफिनेटली मैं मोल्ड नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा मैं शेप नहीं दे पाऊंगा. ये जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड फीडिंग टेक्निक. तो इसमें क्या होता है, फीडिंग टेक्निक में टोंग एक ही जगह रहता है, बस आपको वो टोंग उसी जगह आपको घुमाते जाना है. And somehow I find this technique is very good, because most of the cases जब भी मैं clients के ऊपर या shows के लिए मैं कोई भी looks create करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्निक यूज़ करता हूँ ताकि मैं बालों को जैसे मर्जी मोल्ड करवा सकूँ. बालों में एक टेक्सचर मिल जाता है. Very important to use flat clips whenever you work on the अगर आप ऐसे कर्ल करते हैं उसको स्टे करने के लिए आप हमेशा फ्लैट क्लिप्स यूज़ कीजिए, नहीं तो आपको बैंड आ जाएगा अगर हम लोग क्रोकोडाइल वाले क्लिप्स यूज़ करेंगे. सो आई एम श्योर आप लोग देख सकते हैं. Could you please stand? I have to turn the chair. Yeah. Now sit facing that side. Yeah.
यू पिन्स बड़ी वाली। तो मैं पिन लगा रहा हूँ, मैं पिन्स क्यों लगा रहा हूँ, ताकि यूजली जब हम लोग शिनियॉन वगैरह बनाते हैं हम देखते हैं बाल काफ़ी फिसलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पिन लगा के एक उसका बैरियर बना सकते हैं ताकि वो बाल वहाँ से फिसले ना। एंड अब मैं इजीली इसको रबर बैंड रब टेल को और अभी मैं बहुत क्लीन लुक नहीं करूंगा, दिस इज गोना बी वेरी मेसी। Hi, this is Gaja and you're listening to Perspective with Darren Epstein. Thanks, have fun. Now can you stand and we'll move the chair? Yeah. तो मुझे ऑलरेडी वेव पैटर्न मिल चुका है, मुझे अब क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको ड्रेस करना है जैसा भी मुझे वेव क्रिएट करना है। और कभी भी आप जब एकदम क्लीन लुक पे वर्क कर रहे हो, सो मेक श्योर, सो वी हैव दीज ब्रशेस बेसिकली एंड वी हैव कोम्स आप तब यूज करोगे जब आपको बहुत फिनिश के ऊपर वर्क करना है, बहुत क्लीन लुक के ऊपर काम वर्क करना है। अगर आपको टेक्सचर्ड मेसी लुक के लिए वर्क करना है, सो यू ऑलवेज यूज ब्रश। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिस्टल्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ब्रिस्टल्स मतलब मोर इंटेंशन एंड टेंशन, एंड लेस ब्रिस्टल्स मतलब लेस टेंशन। टेंशन मतलब जो बालों का खिंचना होता है, जो खिंचाव होता है। अगर जितने ज़्यादा ब्रिस्टल्स होंगे उतना ज़्यादा बाल खिंचेगा, और जितने कम ब्रिस्टल्स होंगे उतने कम बाल खींचेंगे।
एंड वेव्स को कंट्रोल करने के लिए आप सेक्शन क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट सेक्शन क्लिप्स। सो एज यू कैन सी मैं बालों को, वेव्स को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। सेक्शन क्लिप। Now I will use invisible pins to hold my waves. I will lock them. हमें लॉक करना आता है इनविजिबल पिन्स को, दोनों साइड से आप इन कर दीजिए और सिर्फ कॉर्नर्स पे अब आप सोच रहे होंगे ये इतने जो वेव्स हैं ये स्टे कैसे करेंगे इन बालों पे, राइट? सो अगेन देयर इज अ टेक्निक। Dryer and diffuser. Dryer and diffuser.
कोई नहीं। सो मीडियम स्पीड पे एयर जो फ्लो होना चाहिए वो एकदम स्लो होना चाहिए और हीट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हीट पे। तो आप उसको डिफ्यूज ड्राई से हीट दोगे तो जो भी आपने इनलेट लगाया है, जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है होल्डिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। And this will stay for easily for 4 to 5 hours. It will not fall down. एयर फ्लो जो होगा वो मीडियम होगा और जो हीट होगा वो मैक्सिमम होगा। And then you remove all your pins. But you have to be very careful while removing. Yeah, so when you go there, you show them this side. Yeah, so my look is complete. Just walk around and just show them. Instructor. Thank you, Gurusha. We'll see you in a while. So now I have this magic tool which I was talking about. It is called InstaCurl. So let me tell you one example. So one of my clients will be doing it once again. She'll come once again. So let me tell about this InstaCurl, which is like a portable hair stylist. Agar it is very easy to make. So ये जो प्रोडक्ट है अभी इंडिया में नया, हम लोग कोई स्टाइल देख नहीं पाए इधर से। आपने जो भी बनाया, सॉरी, आपने जो बनाया कुछ नहीं देख पाए। आपको जो बोल रहे थे वही समझ रहे थे। यस। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप मॉडल को थोड़ा सा पीछे भी कर दीजिए। ओके, श्योर। Could you please stand?
Yeah, now can you stand back? Can you see now? So basically ये मैंने बालों को प्रेप करा है ये वाला जो टूल है ये वाला टूल यूज़ करके। अब मैं जो टॉप का जो पोर्शन है इसलिए मैंने छोड़ा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वो मैंने कैसे किया है। So don't worry, I'll be showing you what I'm doing it. From that side. और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें आप कंट्रोल भी कर सकते हो कि आपको किस साइड कर्ल पैटर्न चाहिए, कि आपको राइट की साइड चाहिए या तो आपको लेफ्ट की साइड चाहिए। और इसमें आप टाइमिंग भी कंट्रोल कर सकते हो। जो इसमें ब्रेक होगा 8 सेकंड का मिनिमम होता है, देन 10 सेकंड्स का, 12 सेकंड्स का। इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको एक सेक्शन लेना है एंड इस मशीन के अंदर डालना है और इसको सिर्फ बंद करना है। बाल अपने आप अंदर चले जाएंगे और जब वो बाहर आएंगे आप देखना उसमें कर्ल पैटर्न आ जाएगा। आप लोगों को दिखा ये कैसे हुआ? मैं अभी वहां पे करके दिखाऊंगा तब आपको दिख जाएगा। आप लोग सब देख सकते हैं, राइट? सो दिस इज द मैजिक टूल। हाँ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड अ हेयर स्टाइलिस्ट। आई एम जस्ट किडिंग। हाँ, So yes, what do you think about this tool? बहुत कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, इतना हैवी भी नहीं है और द बेस्ट पार्ट इज आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप कर्ल पैटर्न भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपको किस साइड कर्ल पैटर्न आपको चाहिए, कि राइट की साइड चाहिए या लेफ्ट की साइड चाहिए। अगर बाल फाइन है, मेक श्योर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 180 to 200 होना चाहिए। अगर बालों का जो डेंसिटी है वो थिक है और बाल का जो टेक्सचर है वो भी डेंस है, देन आप 230 तक इस पे लेके जा सकते हैं। 230 टेम्परेचर विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। ये अपने आप कर्ल करता है। You just take a section, आपने इस मशीन के अंदर डाला, बाल अपने आप अंदर चला जाएगा। आपको होल्ड करना है, आपको फील होगा हाथ में कि वो अंदर राउंड हो रहा है, मशीन घूम रहा है, और जब वो रुक जाए आपको छोड़ देना है। No. So this is I'll be creating a red carpet look with help of this. So what I have to do now, जो भी मैंने किया उसको मैंने खोल दिया। अगर आप देखो, अगर आप कोई शूट वगैरह कर रहे हो मैगजीन्स के लिए या फिर engagement टाइप के लिए, then see you get very good curl pattern, like a very beach waves which is in very vogue now these days. Now what I'm going to do is I will divide here into 3 parts. So one is right side,
So I divided my hair into three parts. One is this, and the other one is this, and then the back. So what I'm going to do with this, I will again take three more subsections. I will divide into three. जो पीछे वाला part है. I need rubber band नीचे से भाग के लेके. Good afternoon, people, and namaskar to everyone. So, as you know that I'm representing Iconic right now. So let me talk about Iconic. Iconic as a brand, it's one of the best brand in India, I would say, and it is all the equipments are made in India. And this is the only brand, which is Indian brand, which is doing very good, even internationally. So just recently, we have expanded our brand to Dubai and UAE. And soon we'll be expanding our brand in Europe countries also. The products, the equipments, whatever we have almost everything. Like whatever you need for hairdressing, tongs, straightening iron, and your crimping machine. And you have more, which I'll be doing it on my models. And there is one magic tool also, which I'll be showing you. And I'll be creating a look by using that. And the equipments are very handy, very comfortable, very lightweight, जो एक स्टाइलिस्ट का नीड होता है जब हम लोग कोई भी स्टाइलिंग क्रिएट करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है बहुत हैंडी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए ताकि हाथों में दर्द ना हो या कुछ भी और प्रॉब्लम होते हैं. सो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड so today I'll be doing four looks. So I'll be doing 4 models. And the one look is very bridal collection type, you know, it's Good afternoon, people, and namaskar to everyone. So as you know that I'm representing Iconic right now. So let me talk about Iconic. Iconic as a brand, it's one of the best brand in India, I would say, and it is all the equipments are made in India. And this is the only brand, which is Indian brand, which is doing very good, even internationally. So just recently, we have expanded our brand to Dubai and UAE, and soon we'll be expanding our brand in Europe countries also. The products, the equipments, whatever we have almost everything. Like whatever you need for hairdressing, tongs, straightening iron, and your crimping machine. And you have more, which I'll be doing it on my models. And there is one magic tool also, which I'll be showing you. And I'll be creating a look by using that. And the equipments are very handy, very comfortable, very lightweight, जो एक स्टाइलिस्ट का नीड होता है जब हम लोग कोई भी स्टाइलिंग क्रिएट करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है बहुत हैंडी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए ताकि हाथों में दर्द ना हो या कुछ भी और प्रॉब्लम होते हैं. सो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड so today I'll be doing four looks. So I'll be doing 4 models. And the one look is very bridal collection type, you know, it's very vintage. हम लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी मैगजीन्स में वेव्स वगैरह करके कितने अच्छे exaggerate करके डिफाइंस करके अपडूज बनाते हैं. तो that I will show you how to create waves. And the second look is more of like a red carpet look. So if you see red carpet looks, it's more of like a fun, texture, messy hair. And how you know, create a nice and very sharp look, very chic look, something which is in vogue now these days. अब जो वो बूफों वगैरह वाला ज़माना था वो गया, right? हम लोग देखते होंगे मैगजीन्स में, एडिटोरियल्स में कितने nice waves and exaggerated and very lot of texture. So those kind of looks I'll be doing it today. And my third look is more of like it's going to be very fun. So we'll play with the hair. And I gave this name to this look of mine, which is work hard and party harder. So basically, I'll show you a very defined look, and then I will play with it, and we'll make it like more fun and more textured. And the fourth one is very futuristic. Futuristic means something which is very avant-garde, which is very big. So you can have like, you know, you won't be able to do it on clients, but I'm sure you'll get inspired and uske aaspaas ka kuch you can do something at.
So I'll call my first model. I will not waste my time. It is already here. So as you can see, Gurusha, could you please stand? Could you please stand? Episode 50. So I would like to show you कि मैंने इनके बालों को prep कैसे करा है. मैंने इनका 4 radius sections लिया पहले. आप देख सकते हैं. मैंने बालों को 2 साइड में डिवाइड किया, ईयर टू ईयर सेक्शन लिया, एंड देन उसमें मैंने बहुत टाइट करके पोनीटेल बांधा है. फिर मैंने पोनीटेल करने के बाद उसके ऊपर क्रिम्पिंग करा है, और फिर मैंने उसके अंडरनीथ में मैंने एक वॉल्यूम लगाया है. कैन यू सी दिस वॉल्यूम? तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं. अभी तक हम इसको क्या बोलते थे? स्टफिंग, राइट? तो स्टफिंग जो है बहुत ओल्ड स्कूल लगता है, बहुत. सो अगर आप इसको वॉल्यूम बोलोगे, वॉल्यूम हम क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ ये हमें वॉल्यूम क्रिएट करता है, तो इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे. ये थोड़ा सा और इंटरनेशनल टेक्निकली साउंड करेगा अगर आप इवन आप अपने क्लाइंट्स के आगे हम बोलोगे तो. सो मैंने इनके अंडरनीथ वॉल्यूम लगाया है, एंड देन इससे मैं एक शिनियॉन क्रिएट करूंगा, एंड देन उसके बाद विल क्रिएट अ वेव्स. या सो फर्स्ट आई सो एज यू कैन सी, मैंने इनके ऑलरेडी साइड्स में वेव्स क्रिएट करने के लिए टोंग किया हुआ है. तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन सा टेक्निक यूज करा है, और मैं इन टॉप सेक्शन पे आपको ये करके दिखाऊंगा. एंड गाइस, अंडरस्टैंड वन थिंग. सो बिफोर आई स्टार्ट माई ऑल द लुक्स, लेट मी टेल यू अबाउट द थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा फंडामेंटल. जब भी हम हेयर ड्रेसिंग करते हैं जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले सारी पिन्स. डू वी नो सारी पिन्स के बारे में? हमारे पास डिफरेंट साइज़ की पिन्स आती हैं, बॉब पिन्स आती हैं, यू पिन्स आती हैं. सो बेसिकली जो बॉब पिन्स होती हैं आप कब यूज़ करते हो? कोई बताना चाहेगा? आई एम श्योर सबके अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बॉब पिन्स हमेशा जब भी आप स्कैल्प के ऊपर वर्क करते हो, आप हमेशा स्कैल्प के ऊपर सिर्फ बॉब पिन्स यूज़ करते हो. एंड देन वी हैव यू पिन्स, which is we even call it Jura pin, and Jura pin we use it when we work on the volume. जब हमें कोई भी शेप क्रिएट करना होता है, जब हमें कुछ भी जो आप शेप अचीव करना चाहते हो उसको होल्ड करने के लिए आप ये वाली पेन्स यूज़ करते हो. एंड देन वी हैव इनविजिबल पेन्स. इनविजिबल पेन्स आर समथिंग आपको ये जब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हम पूरा जो लुक है वो फिनिश कर रहे हो, मतलब एकदम लास्ट में फिनिश करने के लिए. And even the best part, even Iconic has pins also, yeah. And usually you don't get pins जिनके नीचे डॉट होता है, ताकि ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं, क्लाइंट को कभी भी लगेगा नहीं. अदरवाइज आप देखोगे आप पिन्स लगाते हो, क्लाइंट के मुंह बनते हैं, दे फील इट हर्ट्स ऑल्सो समटाइम. हमें पता नहीं चलता है, पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाते हैं क्लाइंट्स. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार. तो कंफर्ट होने के लिए मैं आइकॉनिक की पेन्स यूज़ करता हूँ. या अनलेट मैं बालों में स्प्रे करूंगा ताकि मुझे होल्ड मिले अच्छा सा. मैंने बालों को ऑलरेडी प्रेप करके रखा है. मैंने बालों में पहले ब्लो ड्राई करा है, मैंने प्रेप प्रोडक्ट्स लगाए हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था, जो भी हम लोग अपडूज बनाते थे, कुछ भी हम लोग लुक क्रिएट करते थे, हम क्लाइंट्स को बोलते थे कि अपने आप वॉश मत करना, विदाउट वॉश करके आना, तो हमारा जो जूड़ा है और ज़्यादा अच्छा बनेगा जो भी आप अपडू कर रहे हैं. बट अब ऐसा नहीं है. अब अगर आपको बहुत एडवांस, बहुत डिफाइन लुक क्रिएट करनी है, बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत इंटरनेशनल लुक क्रिएट करनी है, तो आपको बालों को प्रेप करना होगा, अच्छे से ब्लो ड्राई करना होगा, एकदम नाइस एंड क्लीन. एंड उसके बाद आप टोंग कर सकते हैं. टोंग करने का सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या होता है, मैंने ये चीज़ नोट करी है कि दिल्ली में काफ़ी सारे स्टाइलिस्ट हैं जो टोंग्स नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप टोंग्स करेंगे एक बार तो बालों को किसी भी वे में आप उसको मोल्ड कर सकते हो जैसा आप चाहते हो. स्ट्रेट बालों को डेफिनेटली मैं मोल्ड नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा मैं शेप नहीं दे पाऊंगा. ये जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड फीडिंग टेक्निक. तो इसमें क्या होता है, फीडिंग टेक्निक में टोंग एक ही जगह रहता है, बस आपको वो टोंग उसी जगह आपको घुमाते जाना है.
मैं बालों को बैक कॉम्ब कर रहा हूँ थोड़ा सा टू क्रिएट मोर टेक्सचर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वेव्स हैं ये बहुत अच्छे से डिफाइन लगने चाहिए, तो मैं इनमें क्या करूँगा, स्प्रे करके मैं इनको अगेन डिफ्यूज़र से हीट दूंगा ताकि वो फिक्स हो जाएं। So you will see defined curves also and then you will see a lot of texture. ऐसा सा लुक आप कुछ कर सकते हैं, स्पेशली जब आप कुछ मैगजीन या एडिटोरियल के लिए काम कर रहे हैं। और नहीं भी तो अगर एडिटोरियल, आप कितने सारे लोग स्टाइलिस्ट हैं जिनको मैगजीन वगैरह में काम करने का मौका नहीं मिलता, तो आई एम श्योर आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए एंड देन यू कैन मेक योर ओन कलेक्शन, पुट इट ऑन फेसबुक आजकल इतना सोशल मीडिया है एंड दैट इज़ हाउ यू कैन कम फ्रंट में आके द वे आई एम डूइंग इट है। वन डे आई एम श्योर आप में से कोई और भी खड़ा होगा और ऐसे करेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। And see, now I'm going to remove my pens. आप और टाइम देके इसको और क्लीन कर सकते हैं और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। Yeah, please walk around. Yeah. And this is my final look, which is like very futuristic, as I said. हाँ, volume. एक और चाहिए। तो मैं अपना बेस बनाने के लिए मुझे वॉल्यूम लगाना है, तो उसके लिए मैं बीच में से थोड़ा सा मैंने सेक्शन लिया है हॉर्सशू के नीचे। आप नहीं देख सकते कोई भी। या could you please stand? या आप यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे बहुत क्लीन बनाने का ज़रूरत नहीं है ब्रेड। और वॉल्यूम के ऊपर आप कभी भी जब पिन्स लगाते हैं तो मेक श्योर वो वॉल्यूम में वापस जानी चाहिए, तभी वो आपका जो वॉल्यूम है आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग बनेगा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला?
तो जब भी आप वॉल्यूम में लगाएंगे ऑलवेज वो वॉल्यूम में ही जाना चाहिए स्टफिंग के अंदर पेन। एंड यू ऑलवेज चेक इट। आई एम श्योर मैंने अभी तक जितनी भी लुक्स करी हैं आपको समझ में आया। यू पेन तो मैं चाहता हूँ ये वाले बाल इससे ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, तो उसके लिए मैं अगेन यू पिन लगा रहा हूँ, अपना एक बैरियर लगा रहा हूँ ताकि वो बाल उसके ऊपर ना जाएं। अगेन अगर आपको फिक्स करना है, अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा फिक्स करना चाहिए कि आपका जो भी लुक है, जो भी आप शेप क्रिएट करना चाह रहे हो वो खुले ना इजीली, तो हीट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसे आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हो। जो स्प्रे है, जो भी होल्डिंग स्प्रे है, हीट से और ज़्यादा